کراچی UC8 دفتر کا افتتاح سندھ حکومت پر تنقید اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش۔ نیو کراچی رپورٹ نمائندہ خصوصی سید حسن شاہ نیو کراچی ٹاؤن کے سیکٹر 5 میں UC8 کے نئے دفتر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف، وائس چیئرمین شعیب بنظیر، جماعت اسلامی ضلع شمالی کے امیر طارق مصطفیٰ، UC8 کے چیئرمین ڈاکٹر خالد محمود اور جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ داران و کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین محمد یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ حکومت، میئر کراچی مرتضی وہاب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے کہ وہ افتتاحی کلمات ادا کریں۔ محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ٹاؤن چیئرمین جناب یوسف بھائی کا شکریہ ادا کروں گا اور امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی جناب طارق مصطفیٰ بھائی اور وائس چیئرمین ٹاؤن جناب شعیب بن ظہیر بھائی تشریف فرما ہے۔ آج انتہائی مصروفیت کا دن ہے، 7 تاریخ ہے اور اس وقت بہت زیادہ روڈوں پر زیادہ کام ہے۔ اس میں بہت زیادہ مصروفیات ہونے کے باوجود میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے مہمان گرامی کو کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود ہماری اس UC کے لیے ٹائم نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ چند مختصر سی بات، اور اگر جو ہے آپ اندازہ کریں کہ بہت بڑا رقم جو ہے نا صرف اس انفراسٹرکچر کو درست کرنے کے لیے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے چاہیے، یعنی کہیں پر جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے تبدیل کرنے کی شدید ضرورت تھی، لیکن بہرحال اسٹیم نے اور جبکہ یہ سیوریج اور واٹر بورڈ جو ہے یہ ان کا جوڈکشن ہی نہیں ہے اور یہ اس پہ جو ہے فنڈ جو لگا رہے ہیں یہ اپنے طور پہ ہی اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس لیے خرچ کر رہے ہیں توجہ دی۔ اور آج کی صورتحال ایسی ہے کہ الحمدللہ پچھلے ہفتے جو 2 دن 3 دن ڈاکٹر خالد صاحب چیئرمین UC8 شاہ فیصل، محترم یہاں پر موجود میرے عمران فقیر بھائی وائس چیئرمین UC8، احمد خان بھائی، عمران شفیق بھائی اور یہاں پر موجود اہل علاقہ، میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام لوگوں کی آمد پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس تقریب کے اندر آئے۔ ہماری میڈیا کے ساتھی بھی، ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھی بھی اور اس یونین کونسل کا جو اسٹاف ہے وہ بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہے۔ یونین کونسل کے دفاتر ظاہر ہے کہ خود دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے جہاں پر ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہوں اور ہماری جگہ جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، پروقار ہونی چاہیے اور ایک اس طرح کی انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جتنا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے اتنے ہی کام جو ہے وہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن کسی کھنڈر اور بدنما جگہ کے اوپر بیٹھ کر کوئی تعمیراتی کام کرنا، کوئی مثبت کام کرنا وہ ظاہر ہے کہ ایک دشوار ہوتا ہے۔ الحمدللہ مختلف یونین کونسلوں کے اندر اپنے دفاتر کو بھی بہتر کیا ہے، گلی محلوں کے اندر جو ہے وہ کاموں کو بھی آگے بڑھانے کی پوری صحیح وجہت جو ہے کی جا رہی ہے۔ اس وقت پورے بلدیاتی نظام کو کم و بیش کوئی 2 سال جو ہے مکمل ہو گئے ہیں جون کے اندر، اور 2 سال اس کے ٹینیور کے جو ہے وہ باقی ہیں۔ اس پورے عرصے کے اندر ظاہر ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن DMC کے زمانے کے اندر نظر انداز کیا جانے والا علاقہ رہا ہے۔ تعمیر اور ترقی کا کوئی کام ہوتا تھا، کوئی سڑک بنتی تھی، کوئی سیوریج کا نظام بہتر کیا جاتا تھا تو وہ ناگن چورنگی سے پہلے UP موڑ سے پہلے سارے کام ہوتے تھے، اور نیو کراچی کو شاید یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی الگ دنیا ہے اور اس کے لیے نہ کوئی فنڈ ہوتا تھا نہ کوئی کام ہوتا تھا۔ اگر کلک کی بات بھی کی جائے تو صرف پورے ٹاؤن کے اندر اس عرصے کے اندر ایک سڑک جو 2 منٹ سے لے کر
जो है कॉलेज स्कूल तक बनी, इसके अलावा कोई इस तरह का प्रोजेक्ट न्यू कराची टाउन को जो है वो नहीं मिल सका। न्यू कराची टाउन के अगर मसाइल की बात की जाए तो मसाइल बेतहाशा मसाइल, अनगिनत मसाइल, और मैं तो न्यू कराची टाउन के लोगों की अज़मत को सलाम करता हूँ कि इतने सारे मसाइल के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को किस तरह से रहते हैं, ये ज़ाहिर है कि उनकी बहुत ही मशक्क़त और मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची टाउन ने बल्दियाती सिस्टम संभालने के बाद, टाउन बनने के बाद हमने कोशिश की कि इसकी तामीर की जाए, मसाइल को हल किया जाए और आवाम के ने जो तवक्कात हमसे बांधी थी उन तवक्कात के ऊपर पूरा उतरा जाए। ज़ाहिर है कि हम कोई ऊपर से पैराशूट के ज़रिए से नहीं आए, बल्कि आवाम के वोटों के साथ, आवाम की तायद के साथ, आवाम की जो है वो वोट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू कराची टाउन के अंदर आए और आने के फौरी बाद जो भी चीज़ें थी उनको एड्रेस करने शुरू किया। मेरा ख्याल है और मैं इस बात के ऊपर यकसू हूँ कि न्यू कराची टाउन के लोग इस बात की गवाही देंगे कि पिछले 10-15 सालों के अंदर वो काम नहीं हुए कि जो इन 2 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए हैं। मसाइल बेतहाशा आज भी मौजूद हैं और मसाइल तो उस वक्त भी मौजूद होंगे कि जब बहुत सा काम करके ये टेन्योर मुकम्मल हो रहा होगा, उस वक्त भी जो है वो काम मसाइल अपनी जगह जो है वो मौजूद होंगे। होना ये चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम होना चाहिए, बल्दियाती इदारों को इख्तियार मिलना चाहिए, बल्दियाती इदारों को वसाइल मिलने चाहिए। लेकिन ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से ये बल्दियाती इंतखाब हमें मिला है, 4 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के बाद जो है बिल आखिर इलेक्शन हुए, ये बल्दियाती निज़ाम बना और ये बल्दियाती निज़ाम इस हाल के अंदर बना कि जिसके अंदर बल्दियाती नुमाइंदों को न सेवरेज उसके इख्तियार में है, न पानी उसके इख्तियार में है, न सफाई सुथराई का पूरा जो अमल है वो उनके इख्तियार के अंदर दिया गया, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है वो हमें छोड़ा गया कि अब आप काम करके दिखाएं। लेकिन एक अमल तो इस मौके पे ये हो सकता था कि हर वक्त हम इसी 24 से लेकर 30 जून 2025 तक का पूरे साल का जो टेंडर होना था वो नहीं किया और इसके नतीजे में पूरे न्यू कराची के अंदर सेवरेज के और पानी का कोई काम जो है वाटर बोर्ड के ज़रिए से जो है वो नहीं हो सका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 5J का जो मसला था, हमने कहने को हम हाथ खड़े कर सकते थे कि हम तो वाटर बोर्ड के पीछे भाग रहे हैं। इसके बाद हमने इस बात का ऐलान किया, हमने जब देखा कि वाटर बोर्ड अपना काम किसी तौर पे करने के लिए तैयार नहीं है तो हमने उस विंचिंग को टाउन के तहत करवाने का आगाज़ किया। और आज से 4-5 दिन पहले वहाँ विंचिंग मशीन आई और जाहिर है कि जो पूरा काम है, जिस डिपार्टमेंट का काम है, पैसे हम दे रहे हैं। हमने वाटर बोर्ड से कहा कि आप खड़े होंगे, आप इस काम को करवाएंगे, विंचिंग लाने की जिम्मेदारी आपकी है, विंचिंग के दुरुस्त अंदाज में निगरानी करने का काम आप अंजाम देंगे, इसकी अदायगी टाउन करेगा। लेकिन हाल ये है कि आज से 3 दिन पहले वो विंचिंग मशीन वहाँ से उठा ली गई। हमने उसका एडवांस पैसे दे चुके थे, उनको अदायगी, पहली अदायगी जो हमसे तलब की गई थी वो कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विंचिंग मशीन उठा ली। हमने दोबारा उनके ऊपर ताक़ुब किया, कोशिश है कि कल तक वो दोबारा विंचिंग मशीन आए और इस काम का आगाज़ हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आप चेयरमैन हैं वाटर बोर्ड के, पैसे जब हम दे रहे हैं तो आपका अमला काम क्यों नहीं करता? उसको काम करने में क्या परेशानी है? ठीक है आपका टेंडर नहीं हुए, ठीक है वाटर बोर्ड टेंडर नहीं करा सका, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर अलग बात होगी। लेकिन जो इसका पैसा टाउन दे रहा है, आप वो काम भी नहीं कर सकते तो फिर इनको तनख्वाहें क्यों मिलती हैं? फिर ये क्यों जो है आवाम के टैक्सों के ऊपर इनको पाला जा रहा है? मैं इस मौके के ऊपर 11B का भी तस्करा करना चाहता हूँ कि जो नेशनल गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है, वो 11B की मेन सड़क है। आज से 15 दिन पहले एक्सीएन को ले जाकर मैंने वहाँ विज़िट किया और ऐलान किया कि ये काम भी, यहाँ जो नई लाइन डलनी है वो हम टाउन के फंड से डलवाएंगे। लेकिन हाल ये है कि आज 15 दिन गुजरने के बावजूद वो काम शुरू नहीं कर सकते। ये हाल है हमारे इदारों का, ये हाल है उनके हरदर्मी का कि पैसा मसला है तो पैसे का मसला हम हल कर रहे हैं।
तो आप मोहतरम शुएब बिन जहीर भाई से मैं गुजारिश करूंगा, वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन से, कि वो आए अपना सर्टिफिकेट जो है टाउन चेयरमैन से वसूल करें। इसके साथ मैं चाहूँगा कि जावेद जमाल साहब जो है पार्क्स डिपार्टमेंट के, ये जितने पार्क्स यहाँ बनते हैं और जो उनकी यहाँ पे काबिशें हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना सर्टिफिकेट जो है मोहतरम टाउन चेयरमैन से वसूल करें। हमारे दरमियान ये जो हम सिंध सॉलिड का एक रोना रोते हैं, हमारी टाउन की टीम यहाँ मौजूद है जो साल की उनकी प्रैक्टिस है और उनके यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं। और अभी आपने ईद उल अज़हा पे पूरा ऑपरेशन देखा कि फ़ौरन से पहले और जहाँ से कॉल आई फौरी तौर पे वहाँ से जो है वो सफाई का अमल मुकम्मल किया गया। मुश्ताक खान साहब, एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन, मैं गुजारिश करूँगा कि टाउन चेयरमैन से अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मुश्ताक खान साहब। इसी तरह ये यूसी जहाँ हम मौजूद हैं, जो अब शब रोज़ अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, इसका पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है। आपके साथ कहूँगा कि वो अपना सर्टिफिकेट जो है टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब से वसूल करें। सिकंदर खान साहब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाएं और मोहतरम टाउन चेयरमैन से अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। जावेद हुसैन साहब हमारे क्लर्क हैं, टाउन चेयरमैन से वसूल करें। इसी तरह मिर्जा अब्दुल जावेद साहब, मोहसिन खान साहब, मैं चाहूंगा कि वो मोहतरम मोहम्मद एजाज साहब तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट टाउन चेयरमैन से वसूल करें। मोहतरम इमरान साहब, मैं चाहूँगा तशरीफ़ लाएं और मोहतरम टाउन चेयरमैन से अपना सर्टिफिकेट जो है वो वसूल करें। मोहतरम अशफाक कुरैशी साहब, मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं और मोहतरम टाउन चेयरमैन से अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। हमारे दरमियान इस वक्त चूँकि आपको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम का वक्त है और इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो अपनी इमरजेंसी ड्यूटीज़ के अंदर मौजूद हैं। हमारे दरमियान इस वक्त जो है मौजूद हैं सिंध सॉलिड वेस्ट के इंचार्ज UC8 मोहतरम इमरान साहब, मैं चाहूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट जो है वो टाउन चेयरमैन साहब से वसूल करें। इंशाअल्लाह ये तरक्की का सफ़र, या आगे बढ़ने का सफ़र बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जारी और सारी रहेगा। मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह पेवर ब्लॉकिंग का काम इसमें बरकत अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जिस खुलूस और मेहनत के साथ यहाँ लोग अपना दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनका दस्ते बाजू बन जा, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं, या अल्लाह उसको दूर फरमा। या अल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आवाम है, बहुत सारे लोग हैं कि जो ये तवक्को रखते हैं कि हमारे इलाके के मसाइल हल हों। या रब्बुल आलमीन हमें इस काम के लिए मुश्तरका तौर पर जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा।